यस्य भूमि ब्रह्मा अन्तरिक्षम् उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। যারা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে লিপ্ত সেই রাজনৈতিক নেতাদের শুভ বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা জানালেন আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভারদ্বাজ। তুমি আসক্তি শূন্য হইয়া সর্বদা কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করো, কারণ অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ পরম পদ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার কর্মযোগ অধ্যায়ের এক অংশে শ্রীকৃষ্ণ এমন পরামর্শ বা উপদেশই দিয়েছেন তার পরম শিষ্য অর্জুনকে। সোমবার শিলিগুড়ি সোমানি মিল কম্পাউন্ডের তেরাপান্ত ভবনে আয়োজিত শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা জ্ঞান প্রবাহের প্রথম দিন কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন পরম জ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানী তথা সাধক আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভারদ্বাজ। 17 জুলাই বিকেল থেকে শুরু হওয়া এই গীতা জ্ঞান প্রবাহের অনুষ্ঠানে 23 জুলাই পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন বিকেল 5টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভারদ্বাজ মহাশয় গীতার বিভিন্ন দর্শন মেলে ধরবেন। তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বও রয়েছে। শ্রী ঋষি অরবিন্দের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে শিলিগুড়ি মিলনপুলের ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ, এটাই এই প্রবচনের মূল বিষয়। এদিন আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভারদ্বাজ বিভিন্ন সঙ্গীতের মাধ্যমে গীতার কিছু কিছু দর্শন মেলে ধরেন। তার সঙ্গে গলা মেলান উপস্থিত শ্রোতারাও, যাতে আরও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় গীতার বিভিন্ন তত্ত্ব। আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভারদ্বাজ বরাবরই শ্রী অরবিন্দকে স্মরণ করেন। তিনি তার প্রবচন আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দকেও স্মরণ করেন। তিনি তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হোক বলে প্রার্থনা করেন, যারা আজ রাশিয়া ইউক্রেনের মতো যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, কুকুর যদি মানুষকে কামড় দেয় সেটাতেও কুকুরের অপরাধ হয় না, কেননা সে পশু, সে একজন কুকুর। কিন্তু একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে গালিগালাজ করলেও সেটা তার অপরাধ হয়। এদিন তার প্রবচন শুরুর আগে ভজন সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শিলিগুড়ি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের সমস্ত শ্রী অরবিন্দ অনুরাগী সহ অন্যান্যরা সেখানে বেশ মন দিয়ে প্রবচন শোনার সঙ্গে সৎসঙ্গে সামিল হন। পদ্মশ্রী করিমুল হক থেকে শুরু করে বড় চেয়ারম্যান তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলর যতন সাহা, বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী ও সমাজসেবী সঞ্জয় গলিচা, মিলনপুলি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ট্রাস্টি দিলীপ আগরওয়ালা, সম্পাদক রাজেশ কান্দই, অনুষ্ঠানের কোঅর্ডিনেটর চন্দ্রকান্ত মেহতা, প্রজেক্ট চেয়ারম্যান ললিত কুমার গোয়েল, কো চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়ালা সহ আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভারদ্বাজ মহাশয়ের প্রবচন শোনেন। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের মহিলা শিল্পীবৃন্দ সেখানে ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সব মিলিয়ে সেই সৎসঙ্গের পরিবেশ অতীব সুন্দর হয়ে ওঠে। এরকম সুন্দর পরিবেশ যতই সমাজে ছড়িয়ে পড়বে, যতই মানুষ অন্তর থেকে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার যোগ দর্শন গ্রহণ করবেন, ততই চারদিকে ইতিবাচক ভাবনার পরিবেশ আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। তৈরি হবে শান্তির এক পবিত্র পরিবেশ। সর্বোপরি মানুষ এই সংসারে বারবার জন্ম মৃত্যুর দুঃখ কষ্টের চক্র থেকে মুক্তি পাবে। अरविंद के 150वें जन्म वर्ष समारोह के वर्षव्यापी कार्यक्रमों की कड़ी में हमारी यह संस्था डिवाइन लाइफ फाउंडेशन श्रीमद् भगवद गीता श्री अरविंद के दृष्टिकोण से पर एक आधारित प्रवचन माला का 7 दिवसीय कार्यक्रम आज 17 जुलाई से 23 जुलाई तक शाम 5 बजे से 8 बजे तक इस परिसर में आचार्य श्री अखिलेश्वर जी के मुखारविंद से आयोजित कर रही है। हम सभी नगरवासियों का इस आयोजन में स्वागत करते हैं। आप पधारें और इसका समुचित लाभ उठाएं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं और अपने इष्ट देव और गणेश जी महाराज को आह्वान करते हैं कि कार्यक्रम निर्विघ्न और सुचारू रूप से चले। दीप प्रज्वलन की इस कड़ी से पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री ललित जी गोयल एवं सह संयोजक श्री प्रदीप जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वे आगे आए और आचार्य जी का
दुशाला एवं माल्यार्पण कर स्वागत करें। जी हरिद्वार से सिलीगुड़ी पधारे हैं, उनका स्वागत कर डिवाइन लाइफ फाउंडेशन का प्रत्येक सदस्य खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है। तालियों के गड़गड़ाहट से आचार्य जी का स्वागत करेंगे। व्यास जैसे ऋषि जो विविध प्रकार के सिद्धियों के स्वामी हैं और गीता जैसा महान संवाद छंदोबद्ध कर रहे हैं और हर अध्याय में नमन करते हैं कि ओम श्री परमात्मा। गीता का 5वां अध्याय ये कर्म संन्यास योग है। क्या है? कर्म संन्यास योग। इससे पहले जो अध्याय है, चौथा अध्याय, वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अच्छा, इन 7 दिनों में थोड़ा सा हमें जितने भी हमारे योग हैं, गीता में कितने अध्याय हैं जी? पढ़े लिखे माने गीता तो, और हर अध्याय एक अलग योग है। जैसे भी बुद्ध साहब ने कहा कि विषाद योग एक है, वो पहला अध्याय है। सांख्य योग है, वो दूसरा अध्याय है। कर्म योग तीसरा अध्याय है। और इससे पहले का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। और ये जो अध्याय है, ये कर्म संन्यास। देखिए, भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है, ये सृष्टि को आप ऐसे समझे जैसे बच्चे लोग गांव में तो लट्टू घुमाते थे ना। पहले रस्सी में लट्टू को बांधा, उसको छोड़ दिया, तो लट्टू कब तक खड़ा रहता है? जब तक घूमता। लट्टू तभी तक खड़ा रहेगा जब तक वो घूमेगा। ज्यों ही घूमना बंद हो जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकता, उसे गिरना। तो परमपिता परमात्मा ने ये जो सृष्टि बनाई है, ये कर्म चक्र पर बनाई है। किसमें बनाई है? कर्म चक्र। यद्यपि सभी जन्मों में सभी प्राणियों को अपने शरीर में रहने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं करनी पड़ती, लेकिन उनके लिए कोई सत्संग नहीं, उनके लिए कोई वेद नहीं है, उनके लिए कोई उपनिषद नहीं है, उनके लिए कोई गीता नहीं है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि एक कुत्ता किसी को काटता है तो उसको काटने लगेगा, लेकिन एक समझदार इंसान किसी को गाली भी देता है तो बहुत बड़ा पाप कर सकता है। कहाँ काटना तो अपाहिज बना सकता है, पैर का ऑपरेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या रेबीज हो तो आदमी मर भी सकता है, फिर भी कुत्ते को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग योनि। वो कौन सी योनि है? भोग योनि। लेकिन जो इंसान है, इंसान की सभी जो चेष्टाएं, उन सब चेष्टाओं में कर्म की व्यवस्था काम करती है। वो भोग योनि, ये कर्म योनि, समय न अपना बेकार होगा। वो प्राणी तो किसी तरह से समय बिताएं, उनको कोई दोष नहीं। रखो भरोसा परम पिता पर, तो तेरा बेड़ा भी पार होगा। अंतःकरण में जगा ले ज्योति, अंतिम समय में दीदार होगा। भक्त कहता है कि तेरा जो जन्म है उन जैसा बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे नहीं पता कि सिलीगुड़ी में कितने लोग, संजय गोलचा जी, पेट्स रखते हैं।
यानी उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता बड़े बड़े, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली जैसे महानगरों में अक्सर होते नहीं, महानगरों में देखते भाई बड़े बड़े घर के लोग अपने कुत्ते के साथ, अपने बिल्ली के साथ पूरा दिन खेलते हैं, पूरा समय बिताते हैं। प्राणियों को प्यार करना अच्छी बात है, पालना पोसना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने समय को तो देखो। समय न अपना बेकार होगा हमारा, तो ये कर्म योनि का जन्म है, मानव का जन्म, पता नहीं फिर होगा या नहीं होगा। हमें तो बहुत काम करने हैं, लेकिन हमें जगाए कौन? श्री अरविंद जैसे महापुरुष, उनके जैसे पावन ग्रंथ, और वैसे भी मैंने देखा है महर्षि श्री अरविंद कितने गहरे ज्ञानी हैं, और इतनी गहराई से वो लिखते हैं। उनके सेंटेंस को और पैराग्राफ को एक बार में समझना हर एक के बस की बात नहीं। ऐसा है? ताली बजाइए। ऐसा है, बहुत गहरे चिंतक। दोबारा आना पड़ता है, क्या कहना चाहते हैं श्री अरविंद जी, और बड़ी मार्मिक बात निकल करके आती है। उनके परिप्रेक्ष्य में जब हम गीता को पढ़ें, आप उनकी सभी रचनाओं को पढ़िए। मुझे सौभाग्य मिला है, जिन दिनों में गुरुकुल में पढ़ता था, शर्मा जी के पिताजी तो मुझे गुरुकुल में सिलीगुड़ी के लिए बुलाने के लिए गए थे, रतिराम जी। तो उन दिनों में गीता प्रबंध जब पढ़ता था, व्याकरण अलग पढ़ता था, तो इनको पढ़ता था। वो मेरे शुरू के दिन थे। मैं देखता था कि ये किस तरह के योगी गीता पर लिख रहे हैं, और जितने भी भाष्य हैं इतनी इजीली हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये इतने डिटेल में चले जाते हैं। आप समझना डिटेल में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि जीवन जिस परमात्मा ने बनाया है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया है। कोई भी चीज़ जो साइंटिफिक होती है उसके अंदर बड़े बड़े फंक्शन काम करते हैं, बहुत डिटेल में काम करते हैं। इवन देन जो आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसको यूज़ तो करते हो, लेकिन उसको जिन्होंने फंक्शन किया है, बनाया है, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, जिंदगी भर आप मोबाइल यूज़ करोगे, लेकिन उसको जानना इतना सरल नहीं। तो ये तो जिंदगी है, भगवान की बनाई हुई जिंदगी। इसलिए उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण के इस पावन ग्रंथ पर बहुत सुंदर अपना दृष्टिकोण रखा, अपने भाव रखे। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके चरणों में बैठ कर के भगवद गीता की कथा आपके बीच में कर रहे हैं। कि ये जो अध्याय है, 5वां अध्याय, एक कर्म संन्यास इसलिए है कि कर्म हमारे जीवन का बहुत बड़ा केंद्र है, जिससे हम एक पल भी अलग नहीं हो सकते। और इस अध्याय को हम पढ़ते जाएंगे। और अर्जुन ने, देखिए, जब अर्जुन आए दूसरे अध्याय में, तो एक तरह से सन्यास की चर्चा, जो अर्जुन लेना चाहते थे सन्यास। अर्जुन क्या चाहते थे? कि इस लड़ाई झगड़े के पचड़े से बिल्कुल अलग होना चाहिए। और इसलिए अलग होना चाहते थे कि इसमें बड़ी सारी दिक्कतें हैं, बहुत खून खराबा है, बहुत सारा विनाश है। मैं बहुत बार गीता कथा में समझाया करता हूँ, अगर अर्जुन की जैसी समझदारी कौरवों की भी होती तो कभी भी श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के लिए न कहते। अर्जुन की समझदारी को देखना हो तो पहला अध्याय पढ़िए ध्यान से। अगर डिवाइन लाइफ फाउंडेशन के प्रेमी, गीता प्रेमी बन जाएंगे हमारे साथ, फिर कभी आयोजन होगा तो हम उस अध्याय को भी किसी सत्र में लेंगे। कि अर्जुन इतने प्यारे व्यक्ति हैं, कोई कायर व्यक्ति नहीं है, बहुत विद्वान है, और वो इतने लविंग नेचर के हैं कि वो दुनिया को खुशहाल देख करके आनंदित होते हैं। जो एक अच्छा इंसान होता है ना, किसी को भी सेटल होकर देख के खुश होता है। अर्जुन देखते हैं कि कितनी मुश्किल से सिविलाइजेशन यहाँ आई। आप सोच सकते हैं, महर्षि दयान जी ने भी एक जगह कोट किया है कि ये जो दुर्योधन है, ये हमारी वैदिक संस्कृति का, आर्य संस्कृति का विनाशक व्यक्ति रहा।
अगर इस व्यक्ति ने कुचेष्टा न की होती तो हम कहीं के कहीं होते। तो क्योंकि तब तक हमने बहुत तरक्की कर ली थी, बड़ा ज्ञान विज्ञान हमारे पास में था, बहुत अमीरी हमारे पास में थी, बड़े अच्छे हमारे पास नगर थे, बड़े अच्छे गांव थे, बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल थे, और सदाचार पूर्वक समाज को व्यवस्थित कर दिया गया। तो इतनी अच्छी सोसाइटी तहस नहस हो जाए ये अर्जुन बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए पहले अध्याय में जहाँ उन्होंने कहा उसमें सिर्फ अर्जुन ही बोले हैं, और पहले तो संजय ने धृतराष्ट्र के सामने बात रखी कि दुर्योधन ने किस तरह से तैयारी सारी सुनाई। उसके बाद पहले अध्याय में पूरा अध्याय हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इतना बोलते हैं कि तूने कहा था रथ बीच में ले चलो, अब मैं रथ ले आया, बस मैं रथ ले आया हूं, इतना ही कृष्ण वचन है, बाकी सब अर्जुन। और वहां भी विज्ञान क्या है? विज्ञान यह है कि सेनयोरु भयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में मानो भगवान श्री कृष्ण इस विनाशकारी युद्ध के बीच में एक गंगा बहाना चाहते होंगे शायद, इसलिए अर्जुन को न केवल रथ के माध्यम से बीच में लाए बल्कि प्रेम के भाव में भी बीच में लाए। जो प्रेम पांडवों के प्रति तो आज तक उनके मन में था ही, रथ के बीच में जाते ही कौरवों के प्रति भी वो प्रेम जग गया और एकदम उनके विचार बदलने लग गए, और इतने बदल गए कि पहला अध्याय खत्म होते होते उनका शरीर कांपा, गांडीव छोड़ करके मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, इस स्थिति में वो आ गया। तो वहाँ आप देखना उन्होंने सारे मुद्दे उठाए हैं कि जहाँ लड़ाई होती है, आज आप देखो बेमतलब की लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, बेमतलब की लड़ाई। दुनिया के समझदार नेताओं ने, जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं, उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अमेरिका ने एक तरफ नाटो के माध्यम से लगभग 100 के करीब देश उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली झोंक दिए, और रशिया को अहम का प्रश्न है कि मुझे छेड़ा गया है तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो आज जब हम सिलीगुड़ी में भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं, उस लड़ाई का विस्फोट अभी भी चल ही रहा है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसी सद्बुद्धि गुरुजनों की वहाँ तक पहुँचे, उन नेताओं की बुद्धि में जाए कि तुम्हारा जन्म मरने मारने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म तो जीवन को दिव्य बनाने के लिए हुआ है, डिवाइन लाइफ। और सारा जो समग्र चिंतन है श्री अरविंद जी का ये है कि आप अपने थोड़े से प्रयास को कर दीजिए, उस प्रयास को इतना अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया जाएगा कि बाकी प्रयास दिव्य जगत से होने वाला है। बहुत अच्छी चीजें हैं उनके बुक्स में, आप पढ़ करके देखिए। उनकी सावित्री को आप पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी रचना जिस परम पुरुष ने की है, जिसके संकल्प से ये चल रहा है, उसने आपको यूं ही छोड़ नहीं दिया है। वो आपकी प्रतीक्षा में, वो आपकी सहायता के लिए। तो अर्जुन को दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये जो लड़ाई से पीछे हटने वाली बात है कि इसमें क्या क्या दोष है, और ये तीसरे अध्याय में ले जाकर के तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है कर्मों की लेख आया। दुनिया में जो आया, हमने यही तो गाया अभी, दुनिया में जो आया कर्मों की लेख आया। काया मिली ही तब है जब हमारे पास में कर्म के अकाउंट में कुछ था। कर्म के बिना तो काया बन नहीं सकती। तो इसलिए जो तुम्हारा कर्म है उसे तुमको करना होगा। रही बात तुम्हारी पीड़ा, उसका उपचार योग से हो जाएगा। इसलिए वहां से सिलसिला चल पड़ा। लेकिन सारे सिलसिले में ऐसा लगता है कि कहीं श्री कृष्ण संन्यास को भी मान्यता दे रहे हैं, और कहीं लगता है कि नहीं, कर्म ही बहुत जरूरी है, ऐसा कह रहे हैं।
तो इस तरह से बीच बीच में संशय बना। और योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा मनोवैज्ञानिक कौन हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट को तरतीब से समझाने वाला। वो अर्जुन की भावनाओं को बीच बीच में एक तरफ जगा देते हैं, फिर उसको वहीं छोड़ करके दूसरी तरफ चर्चा करते हैं, उधर से उभारते हैं, इधर से उभारते हैं। आपने देखा है मिस्त्री जब आपका घर बनाता है तो क्या करता है, पूरी लाइन में क्या ईंट के ऊपर ईंट रखता चला जाता है या ऐसा रद्दा पूरा करता है। एक ईंट यहाँ रखी, उसके बाद फिर रखी, ऐसे तो नहीं बनाता। तो क्या करता है, इसके बाद ये लगाता है, फिर ये लगाता है, उस लेवल को पूरा करता है। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में बहुत ही अद्भुत तरीके से चेतना के विकास के लिए अपनी प्रस्तुति देते हैं कि अर्जुन तुम कर्म को समझो। जब समझाते हुए यहाँ आए तो चौथा अध्याय जब पूरा हुआ तो अर्जुन को, क्योंकि अभी तो है ना ऊपर जाना, तो ये प्रश्न पैदा हुआ। तो श्री कृष्ण प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार देते हैं, जैसे यहाँ आपने प्रश्नोत्तरी रख दी है सुनने के बाद पूछने का अधिकार तो है, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे गुरु हो गए। अब गुरु क्या, अगर उसके साथ गांव की भाषा लगा दें तो गुरु नहीं, गुरु घंटाल, कि आप पूछ नहीं सकते। हमने तुम्हें नाम दे दिया, उसको घुमाते रहो, न तुम पूछ सकते हो, न जिज्ञासा कर सकते हो, अपनी बुद्धि में ताला लगाओ और हमारे चेले रहो। ये मानवता के लिए बड़ी खतरनाक बात। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कहते परम पिता परमात्मा ने जो हमें बुद्धि दी है उसका प्रयोग न करने का हमें कोई अधिकार नहीं। इट मीन्स हर एक को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो जिज्ञासा होती है क्योंकि अंतर्यामी भीतर बैठे। तो कहते हैं कि अर्जुन को जिज्ञासा हुई तो श्री कृष्ण रुक गए, हाँ भाई पूछो क्या पूछना है। तो पहला श्लोक देखिए, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, देखिए ग्रंथ इसमें लिखा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयये तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। और गीता में भगवान के नाम भी बहुत हैं। कृष्ण नाम तो बहुत है ही, कृष्ण का बड़ा प्यारा अर्थ है। लोगों ने सोचा कृष्ण सांवले थे इसलिए काला करके उनका रखा है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक गांव की भाषा में लोगों ने सांवला मान लिया हो, लेकिन कृष्ण का जो गहरा अर्थ है, योगिक अर्थ यह है, कृष्ण आकर्षण के लिए। उनका व्यक्तित्व इतना मधुर है, जन्म काल से ही जो कृष्ण को देख लेता है बाकी सब भूलकर उनके साथ हो लेता है, ऐसा आकर्षण उनके पास है। यशोदा मैया के पास जब श्री कृष्ण होते थे तो गांव की देवियां अपने बच्चों को छोड़कर यशोदा से बालक को आशीर्वाद देने आती थी। तो कृष्ण को गोदी में लेने के बाद अपने बच्चे भूल जाते थे, इतने प्यारे थे सब, क्योंकि अलग तरह की सत्ता थी। अत्यंत आकर्षक होने के कारण ये कृष्ण, ये योगिक इसका भाव।